बता रहे। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है इस खास प्रोग्राम में, इस खास शो में, जो कि आज सूर्य ग्रहण जो इस वक्त चल रहा है, सूर्य ग्रहण, उस पर यह हमारा खास प्रोग्राम है। हम आपको बता दें कि करीब 9:15 पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और 3:04 पर यह सूर्य ग्रहण खत्म होगा। कुछ खास बातें यह हैं कि 25 साल के बाद इस तरह का वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिल रहा है और 1995 में आखिरी बार इस तरह का वलयाकार सूर्य ग्रहण देखने को मिला था। इस पर हम लगातार आपको जानकारी देंगे। ये 5 घंटे 49 मिनट के आसपास ये सूर्य ग्रहण रहेगा। इस पर अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और विशेषज्ञों से भी बात करेंगे। अगले 3 घंटे तक हमारे साथ मेरी सहयोगी रुकमा भी मौजूद है। A very warm welcome from me as well to all our viewers in this special telecast in which we'll be taking you through all the events as they occur. It's one of the most awaited celestial event of the year, the annular eclipse. And as Lalchana just told you, it's the ring of fire, and as the annulus is known, and it is already underway. Such an eclipse occurs when the moon is furthest from the earth and thus does not block out the sun entirely, leaving a ring or annulus of fire visible. जी तो बिल्कुल, ये जो सूर्य ग्रहण है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये शुरुआत हो चुकी है 9:15 बजे और 3:04 तक ये चलेगा सूर्य ग्रहण। और ख़ास बात यह है कि भारत के कई हिस्सों में ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाई देगा। कई बार ऐसा होता है कि ग्रहण की घटनाएं होती हैं लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में वो साफ दिखाई देता है, कई हिस्सों में नहीं दिखाई देता। लेकिन भारत के कई राज्यों में, ख़ास तौर पर राजस्थान और उस इलाके में, राजस्थान के आसपास के इलाके में, ये बहुत ही जिसको कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अच्छे तरह से दिखाई पड़ेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि ये अपना सबसे ज़्यादा जिस समय ये दिखाई पड़ेगा वो 12:10 पर सबसे ज़्यादा ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये दिखाई पड़ेगा। And as well you were saying, Bhuj is the first town in India to see the beginning of the eclipse at 9:58 a.m. We are already past that and at around a little after 12, the best part of the eclipse will be seen in India. One of the most awaited events, the annular eclipse, often called the Ring of Fire, is underway. An annular eclipse occurs when the moon is furthest from the earth and thus does not block out the sun entirely, leaving a ring or annulus of fire visible. Today's eclipse coincides with the northern hemisphere's longest day of the year, the summer solstice, when Earth's north pole is tilted most directly towards the sun. A narrow band from West Africa to the Arabian Peninsula, India and southern China are witnessing the most dramatic ring of fire solar eclipse in years. As we were saying, Bhuj is the first town to see the beginning of the eclipse at 9:58 a.m. In Delhi, the eclipse will begin from a short while from now at 10:19 a.m. and will reach the maximum a little after 12 noon at 12:01 p.m. and will end at 1:48 p.m. It will be last seen in Dibrugarh in Assam at 2:29 p.m. Not all of India lies in the path of annularity. The ring of fire will only be visible in a specific narrow band of the country. The obscuration of the sun by the moon at the time of greatest phase of the annular eclipse will be nearly 98.6%. As with any solar eclipse, seeing the phenomenon with the naked eye is extremely unsafe. Observing the solar eclipse requires special glasses with filters. Glasses used by welders are also safe for the eyes. जी तो बिल्कुल, जैसा रुकमा ने कहा कि आज साल का सबसे बड़ा दिन भी है और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए एक बात ज़रूर मैं दोहरा देना चाहूँगा कि किसी भी तरह से नंगी आँखों से इस ग्रहण को देखने की कोशिश नहीं कीजिए। उससे भारी नुकसान हो सकता है आपकी आँखों को भी, आपकी सेहत पर भी। इसलिए जब तक कोई आपके पास वो विशेष ग्लास ना हो तब तक आप
उस चीज़ को बिल्कुल नंगी आंखों से ना देखें, और जब कभी आपको ये अगर सूर्य ग्रहण देखना हो तो जो उसका वैज्ञानिक जो तरीका बताते हैं उसी तरीके से इसे देखें। हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य ने नेहरू प्लेनेटोरियम के सीनियर इंजीनियर ओपी गुप्ता से इस बारे में खास बातचीत की है, देखिए इसे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है ओपी गुप्ता जी। बात करेंगे उनसे, पता करेंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस सोलर इक्लिप्स में। गुप्ता जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पहला सोलर इक्लिप्स है साल का और बहुत देर तक चलेगा, तो क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या इसकी खासियत है? सबसे खासियत तो ये है कि आज दिन साल का सबसे बड़ा दिन इसे कहते हैं, समर सोलिस्टिस बोलते हैं। सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। तो आज के दिन 2 एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हो गई, दूसरे साथ में ग्रहण है और ये एनुलर इक्लिप्स है। दिल्ली से वो नहीं देखी जा पाएगी क्योंकि यहाँ पर पूर्ण नहीं है, और यहाँ से थोड़ी दूर जैसे आपका कुरुक्षेत्र है और ये उत्तराखंड के एरिया से वहाँ से दिखाई पड़ेगी, और वहाँ पर अब एक रिंग बन जाएगी उसके चारों तरफ, क्योंकि सूर्य को पूरी तरह से चंद्रमा नहीं ढकेगा, एक हिस्सा थोड़ा सा बचा रहेगा, तो 98% दिखाई देगा और 2% की एक वो रिंग होगी जा करके। ये इसलिए है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी चंद्रमा सहित सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन इनका पाथ जो होता है वो अंडाकार होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है। तो कभी ये पृथ्वी से नज़दीक होता है और कभी दूर होता है। तो इस वक्त पृथ्वी से थोड़ा दूर है, तो वो पूरी चंद्रमा की चकती को पूरी तरह से न ढक करके उसका थोड़ा हिस्सा छूटा रहेगा, तो वहाँ से सूर्य की किरणें आएंगी, जिसको आप रिंग ऑफ फायर कर सकते हैं। ये सारे जितने जो भी हैं अर्थ के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं। रेफरेंस पॉइंट हमारा अर्थ है, अर्थ से ही ये हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल है। और सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक लाइन में होते हैं तब ये ग्रहण होता, सूर्य ग्रहण होता है। दिल्ली में 10:19 पर शुरू हो जाएगा। पीक टाइम है 12:01 कुछ सेकंड है, और एंड होगा 1:48 पर एंड होगा जाकर। सबसे ज़्यादा देश में कहाँ का ये जो इसका देखने को ज़्यादा मिलेगा इसको? एक अगर उसका मैप देखें तो विजिबिलिटी लाइन ऑफ विजिबिलिटी बहुत एक सकरी, एक 20-21 किलोमीटर लंबी लाइन, चौड़ी नैरो पाथ जिसे कहते हैं, बात है, वो चौड़ी लाइन जाती है। उत्तराखंड में आपका देहरादून है, जोशीमठ है, यहाँ से आते हुए फिर यहाँ आपका हरियाणा में ये कुरुक्षेत्र है, सिरसा है, फिर उधर राजस्थान के कुछ हिस्सों में जा कर के गुजरात में निकल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो ये थे ओपी गुप्ता जी जो बता रहे थे कि क्या क्या इस साल का ये जो पहला सोलर इक्लिप्स है इसमें क्या क्या खासियत है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। जी, तो ये बातचीत तपस ने की थी, और हम अपने 4 संवाददाताओं से इस वक्त जुड़ेंगे सूर्य ग्रहण से जुड़ी खबरों पर। आप देख रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे 4 संवाददाताओं को। तपस दिल्ली से जुड़ रहे हैं, हरदेव दिखाई पड़ रहे हैं श्री गंगानगर से, आशुतोष प्रयागराज से और उर्मिलेश कुरुक्षेत्र से। हमारे 4 संवाददाता जुड़ चुके हैं और शुरुआत तापस आपसे करते हैं। तापस, आपकी ये बातचीत हमने सुनी, मैं ये जानना चाहता हूं और ये भी लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम कि क्या कुछ खास वैज्ञानिकों की सलाह है इस सूर्य ग्रहण को देखने के लिए? आपने सही कहा लालचंद जी कि वैज्ञानिक और जो इधर जो एस्ट्रोनॉमी जो पढ़ते हैं, जो इसके बारे में जानते हैं, उनका सबसे अहम जो बात है वो ये है कि आप खाली आंखों से, मतलब नेकेड आई से आप सूर्य की तरफ, ये जो सूर्य ग्रहण है इसको देखने की गलती ना करें। आपके पास अगर चश्मे हैं, जैसे इस तरीके के चश्मे यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ये स्पेशली बनाए गए हैं सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। अगर ऐसे हैं और फिलामेंट टाइप का कुछ है जिससे आपको डायरेक्ट उसको नहीं देख पाए, तो
एक तरह से उसे बचना चाहिए। तो ये सबसे अहम चीज़ है जिसको बोला गया है, और इस पे बहुत ज़्यादा एक तरह से लोग मतलब जो साइंटिस्ट हैं और जो बात कर रहे हैं, जो स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमी की, वो इस पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। जो दूसरी अहम चीज़ है वो है ये समर सॉलिस्टिस, जो सबसे बड़ा जो दिन है उसका ये पहला एक तरह से ये पूरी शताब्दी में ये 2 बार होगा, ये पूरे 100 साल में ये 2 बार, ये आज जो हो रहा है वो इसके बाद होगा 2039 में। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है कि सबसे समर सॉलिस्टिस में ये जो सूर्य ग्रहण है, और ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है, और इस पूरे साल में कह रहे हैं कि 2 सूर्य ग्रहण हो, लेकिन एनुलर सूर्य ग्रहण जिसे कहते हैं, एनुलर सोलर इक्लिप्स जो है, ये शायद इसके बाद 19 साल बाद आए। तो जो लोग इस नज़ारे को आज देखेंगे उनके लिए शायद ये एक लाइफ टाइम नज़ारा साबित होगा। लालचंद जी। जी बिल्कुल तपस, हमारे साथ बने रहिए आप। और इस वक्त हम रुख करते हैं प्रयागराज में मौजूद आशुतोष के पास। आशुतोष, आपके पीछे का जो नज़ारा दिख रहा है उसमें तो बहुत ख़ास तैयारी दिख रही है। हालांकि कोरोना वायरस के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरह के सूर्य ग्रहण के बाद लोग भारी तादाद में स्नान करने के लिए आते हैं और कई तरह के दान वगैरह करने की भी प्रथा है। ऐसे में लोग किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ये जो रीति है, इस रीति को निभाएंगे वहां प्रयागराज में? Well, we also have with us Hardeep from Sri Ganganagar. Hardeep, a very good morning to you. Rajasthan, right. Rajasthan, one of the places in India that will be witnessing this spectacular phenomenon. Sri Ganganagar is where you are at. Well, whether it is Suratgarh or whether it is Jaipur, I think Rajasthan is one of the states that where people will be able to enjoy this spectacle the most. Hardeep, well, हमसे आशुतोष शुक्ला फिर से जुड़ चुके हैं, जरा उनसे सवाल ले लेते हैं उसके बाद। जी, हरदेव हमारे साथ जुड़े। Right, Hardeep, take us through the kind of preparations in place, the excitement, the sense of anticipation among the public for the solar eclipse today. लगता है फिलहाल हमारे संवाददाता हमसे किसी वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ विशेषज्ञ, अंतरिक्ष विशेषज्ञ अजय लेले भी जुड़ रहे हैं। अजय लेले जी बिल्कुल जुड़ चुके हैं। स्वागत है डीडी न्यूज़ पर आपका अजय लेले जी। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि 25 साल बाद ये वलयाकार सूर्य ग्रहण आज दिखाई पड़ रहा है, क्या खासियत है आज के इस सूर्य ग्रहण की? अगर खगोलीय दृष्टिकोण से इसे समझने की कोशिश करें तो क्या और खासियत है इस सूर्य ग्रहण की? आज साल का सबसे बड़ा दिन भी है। बिल्कुल, जैसा ही आपके पहले एक जो इंटरव्यू लिए रहे थे उसमें जो कहा था कि आज 2 प्रमुख घटनाएं हो रही है खगोलीय दृष्टिकोण से। एक घटना है कि सबसे बड़ा दिन है, और दूसरा एक हमें कंकणाकृति या एनुलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं वो देखा जाएगा। क्या होता है कि पूरे साल में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 2 से 5 इक्लिप्स होते ही हैं, लेकिन हर जगह से ये इक्लिप्स दिखते नहीं है। जैसा इस साल में अब दिसंबर के महीने में एक टोटल सोलर इक्लिप्स होगा, लेकिन वो भारत से नहीं दिखेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के कई हिस्सों में ये दिख रहा है। कई जगह पे पार्शियल है, लेकिन कई जगह पे जिसको हम एनुलर इक्लिप्स बोलते हैं वो है। एनुलर इक्लिप्स देखना बहुत एक अच्छी घटना है खगोल शास्त्रीय दृष्टिकोण से और आम आदमी के लिए भी, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो पूरा विजन है ये एक जिसको बोलते हैं गेम ऑफ शैडोज होता है। तो एक शैडो आती है और शैडो के चक्कर में आपको सूर्य दिखना कम से कम बहुत समय के लिए दिखता नहीं है। जब ये शैडो एग्जैक्टली मैच करती है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि आपका चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर है, इसलिए वो पूरा शैडो से, जैसे हम टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं वैसा नहीं होगा। तो वो सूर्य का कुछ हिस्सा जिसको हम कोरोना बोलते हैं वो दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वो हिस्से में वो शैडो नहीं होगा। सो इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये एक रिंग ऑफ फायर है, और हम इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। इससे कई सारे ऑब्जर्वेशंस भी लिए जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके बच्चों में, आपके युवाओं में एक
खगोलीय दृष्टिकोण जागृत करने की जरूरत है और वो ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उसका हम अच्छी तरह से उपयोग करें। जैसा आपने अभी जी। दिखाया कि 4 जगह से आपके संवाददाता जुड़े हैं, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस दे रहे हैं। आपके नेहरू प्लानिटेरियम में भी लोग बैठे हैं। तो इससे क्या होता है कि लोगों की साइंस की तरह रुचि बढ़ती है। ये जी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। Right, Mr. Lilly, well, today's celestial event is coinciding with the summer solstice, which is the longest day in the northern hemisphere. Could you take us through how this is of great significance? You see, these things do not happen so easily. If you really see the entire history of solar eclipse, or for that matter, even the lunar eclipse also, there are a lot amount of gaps which are there in between. The reason is that you require all the three planets in the line of sight of each other. That means Earth, Moon, and Sun has to have a perfect geometry. This geometry comes only very rarely. That's the particular reason why we are able to see all these basic events at a longer duration. Because if you see why eclipse occur, I think on the first place one must understand that on every moon, on जी every अजय जी, अजय जी आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहिएगा। इस वक्त हम दिखा रहे हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर कि ये सऊदी अरब में किस तरह से नज़ारा दिख रहा है सूर्य ग्रहण का। ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प खगोलीय घटना और उसका ये नज़ारा सऊदी अरब से आप देख रहे हैं, जद्दाह से ये सीधा प्रसारण। आप देखिए कितना बिल्कुल एक बहुत ही रोमांचक सा ये दृश्य है जिसमें आपको बिल्कुल पीले रंग में सूर्य दिखाई पड़ रहा है और जो आप काली छाया देख रहे हैं वो चंद्रमा है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है और इसीलिए ये सूर्य कटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कि आगे चल करके थोड़ी देर बाद वलयाकार हो जाएगा। Right, that visual that we just showed you from Jeddah in Saudi Arabia जी। and और ये दूरबीन से लिया गया ये दृश्य है, टेलीस्कोपिक व्यू। Right, and this visual is from the Indian Institute of Astrophysics from the Hanley telescope, telescopic view, a cloudy sky in Nainital. जी बिल्कुल। And just before that, we were showing you that visual where अच्छा, Saudi Arabia. इस दृश्य में बिल्कुल साफ है कि अभी इस पे जो सूर्य ग्रहण है उसका असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। Not at all. अभी ग्रहण नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। Right, बिल्कुल, right. Although it has started in जी। some places in India as well, Bhuj is the first place. In Delhi, in a short while from now, जी। the timing we were given was 10:19 a.m. And in fact, for a few minutes, there could be total darkness. That's what we were expected told to expect. 12:01 तक शायद यहाँ पर रहेगा दिल्ली Right, में। right. And we were speaking with Mr. Ajay Lele, and we go back to him once again. Yes. Mr. Lele, you were telling us about the significance of how this eclipse coinciding with the summer solstice, the significance of this event, how it is a very rare event. You see, what I was trying to indicate was that the eclipses happen, particularly solar eclipse today we are talking of, on the new moon day. But that doesn't mean that every new moon day you will have an eclipse. This is essentially because the equatorial plane of the Earth and the Moon is slightly at a distance. That means there is a 5-degree of a distance which is there. Hence, to have all the three things, that is the Earth, the Moon, and the Sun, in an entire geometrical position correctly, to have an eclipse, it becomes a very rare phenomenon. So when everything is perfect geometrically, then only these things happen. If you really look at the distance of the Sun from the Earth, it is 400 times than the distance of the Moon. So you can imagine how at a distance the Sun is. But at the same time, there is a certain amount of a matching with the diameter of the Sun. Diameter of a Sun is almost 400 times than the diameter of the Moon. So because of these things, the apparent distance and what we see actually visibly is that we feel that everything is coinciding with each other and one is hiding the other planet. That is the reason why we get a total eclipse, and today that sort of a total hiding is not going to take place. Hence, we are going to witness the annular eclipse. जी। What we were mentioning right now, the eclipse has just started.
So there is something which is known as a first contact, second contact, then the eclipse will start. Then it will start phasing it out. So you will have a total darkness in places like Delhi, Kurukshetra and all that, but that will be only for few minutes when the totality of the eclipse will be achieved. अजय जी, एक चीज़ और हम आपसे ज़रूर समझना चाहेंगे कि ये जो रिंग ऑफ फायर यानी जो वलयाकार दिखाई पड़ता है, ये उन्हीं जगहों से दिखाई पड़ेगा जहां बिल्कुल तीनों की तीनों यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब बिल्कुल एक लाइन में आ जाते हैं तब जाकर ये वलयाकार दिखाई पड़ता है, अगर इसे समझा जाए इस खगोलीय घटना को फिजिक्स के तौर पर। बिल्कुल, इसीलिए आपके पहले रिपोर्ट में जो दिखा रहे थे कि एक टोटल लाइन है इंडिया में जहां से आप देख सकते हैं कि वो लाइन के ऊपर ही आपको वलयाकार दिखेगा। विचार से वो लाइन जोशीमठ तक भी जाती है और डिब्रूगढ़ में ये खत्म हो जाएगी। तो वो पर्टिकुलरली जो लाइन है जहां पे आपको सूरतगढ़, सिरसा ये सब प्लेसेस है, राजस्थान के काफी सारे प्लेसेस है, श्रीगंगानगर से भी हो सकता है, तो ये एरिया में आपको बिल्कुल वलयाकार दिखेगा। बाकी जगह पे जिसको हम पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं वहां पे आपको बिल्कुल वलयाकार नहीं दिखेगा, पार्शियल दिखेगा। बिल्कुल। इस वक्त हम रुख करते हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ, और इस वक्त हमारे साथ हमारे चारों संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। रुख करते हैं। Right, and we were earlier corresponding with Tapas, our reporter Tapas. Well, you were telling us about how Delhiites are preparing. Directions have been issued because these are times when we are battling COVID-19, practicing social distancing. So this time, witnessing this spectacular and dramatic celestial event will be very different. Take us through what's happening. That's right, Rukma. And let me just tell you one thing, that the solar eclipse in the national capital has started. I have with me Siddharth Madan, who's an educator here. He's somebody who was explaining us. And behind me, you can see this is the system that they have placed. It is linked to a telescope, 8-inch telescope that they have created. You can see that this particular system that they have created out there. Each and every one has been given a chance to see how this solar eclipse can be managed. So Siddharth is here. Siddharth, at around 10:19, 10:20 approximately, the solar eclipse was started. I just used this, the solar filters to see that, and it has started actually. Absolutely, it has started. It's looking wonderful from Delhi out here. We were not expecting this to be so clear. I mean, a few moments ago. So let me just tell you why Siddharth is saying that it was we were not expecting, because in the morning it was overcast condition, so it rained in fact, so a lot of people thought that maybe we may not be able to see a clear picture of the solar eclipse. Remember, approximately 94% of the visual of the solar eclipse can be seen from the national capital. And Siddharth is here. Siddharth, we spoke about the fact that it started. It will be seen in almost each and every part of the country, especially in northern India as well as in the Uttarakhand region. Yeah, absolutely. The main region where in the northern parts of the country where the annularity will be visible. Annularity. Yeah. So certain places like Sirsa and Kurukshetra, where proper ring of fire will be at different times, will be visible. From Delhi, it will not be visible, the ring of fire. But 95% of almost of the sun. Almost it will be there for Delhiites who are stargazers, who are near about Delhi NCR, or for that matter even in Uttarakhand, people will have a very clear view of this. And this is an exceptional time because summer solstice is there, and this will be the second time in the century this will happen. Absolutely. This is the most important and the most significant thing that I've been mentioning right throughout, that it's a very big coincidence that this whole solar eclipse, the annular solar eclipse, is happening on summer solstice day. This is going to happen only twice this whole century. Right. So that is one thing which is everyone should look up to. This is once in a lifetime once in a lifetime opportunity. And but if you are really interested, do not watch the sun or the solar eclipse with your naked eye. It can cause a lot of damage to your eyes. You can use this kind of filters, solar filters. Or what else can we expect? Or what we can do is a desi ilaj. What we can do is
You can take a flat mirror anywhere where you are. You can project it towards the sun. Do not look directly into the mirror. Look at the image of the mirror on the wall or on the ground. And then you can look the whole procedure. Yeah. So otherwise it can have a major negative impact. Absolutely. This is something that I've been mentioning throughout, that no one should ever in any circumstances should look at the sun, even on the normal days, nor on these eclipses, because people tend to think that this is an eclipse and the brightness will be low or something like that. Our eyes don't even have pain sensors. So we will not even realize when it will be blinding. So you can imagine, we do not have, as Siddharth said, that our human eyes don't have pain sensor, so it can have a negative impact. In fact, it can blind a person. So keep that in mind. And I know I was actually using the solar filters to see the solar eclipse, and let me tell you, it's actually beautiful out there. जी बिल्कुल